آپ کی غیر موجودگی میں محل کی زندگی ٹھہر سی گئی تھی والدہ. ہر چیز ساکت ہو گئی ہو جیسے، خاص طور پر آقا کے لیے. یہ آخری بار تھا مہرباں. اب کوئی بھی میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکے گا. میں اس کا موقع ہی نہیں دوں گی. تو پھر اب آپ کو خود کو بھی روکنا ہوگا والدہ، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے دربار کو خفیہ طور پر سننے کی وجہ سے ہوا ہے نا. یہی ہوگا، مجھے معلوم تھا. میرے رخصت ہوتے ہی میری اولاد کے دل میں میرے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا. بیاست، جہانگیر، تم، کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ ان سب کے ساتھ مل کے کیا مجھے مارنا چاہتے ہو تم لوگ؟ والدہ، میں نے وہ اپنی خوشی سے نہیں کیا تھا. دیکھ لیا تم نے اپنے برادر مصطفیٰ کو؟ کھلم کھلا ہمارے خلاف میدان میں آ چکا ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ وہ اگلی بار ہم سب کو اپنی تلوار کی نوک پہ رکھے گا. اللہ نہ کرے. آمین. شہزادہ الکاس مرزا استنبول میں ہے. تم نے کیا دیکھا اسے؟ بس ایک بار ہی دیکھا انہیں، لیکن ان سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا. آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ الکاس مرزا اہم شخصیت ہے، وہ ہمارے کام آ سکتا ہے. جلد ہی تم اپنے محل میں ایک ضیافت کا اہتمام کرو گی اس کے لیے. اس سے اچھے تعلقات رکھنے میں فائدہ ہے. رستم سے بھی بات کروں گی میں اس بارے میں. جیسے آپ کی مرضی والدہ. اگر آپ چاہیں تو فاطمہ سلطان کو بھی بلوا لوں گی، کیونکہ وہ انہیں کچھ زیادہ ہی پسند ہے. مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. الکاس مرزا جیسے نوجوان شہزادے کے لیے ضرور کوئی نرم گوشہ رکھتی ہوں گی فاطمہ سلطان اپنے دل میں. مہرباں، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ آگ بجھ رہی تھی تو. یہ تمہارا کام تو نہیں ہے. کسی کنیز کو کیوں نہیں بلوایا تم نے؟ کوئی بات نہیں، آپ کا انتظار کرتے ہوئے میں خود کرنے لگی. کیوں انتظار کر رہی تھی میرا؟ رستم نے مجھے ہور جہاں کے مسئلے کا بتایا، لیکن والدہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جتنے کم لوگوں کو معلوم ہو اچھا ہے. میں اس کو جلد حل کر لوں گی، اس لیے نہیں بتایا تمہیں. انہیں آگ نے بہت پہلے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے والدہ. آپ جتنے دخل دیں گی وہ اتنا ہی قریب ہوں گے. چھوڑیں، مجھے حل کرنے دیں. اگر اس کی ضرورت پڑی تو میں اپنی لازوال محبت کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤں گی. آؤ. ملکہ، مہرمہ سلطان تشریف لائی ہیں کچھ دیر پہلے. رستم پاشا کے کمرے میں گئی ہیں. تو کیا حرج ہے اس میں؟ وہ کچھ بے حال سی لگ رہی تھی. مہرماں، بہت غور کیا رستم. اب میں اس تلخی کو اپنے اندر مزید نہیں رکھ سکتی. یہ بہت اذیت ناک ہے. انسان دنیا میں ایک بار آتا ہے، اس کا مقصد خوش رہنا ہے. اس طرح جیسے کچھ نہیں ہوا، سب کچھ اچھا ہے. میں ایسا برتاؤ کر کے آپ کے ساتھ حق تلفی کر رہی ہوں. اس کا کیا مطلب؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم دونوں خاموش کیوں ہو؟ والدہ، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے میں جتنا ہمارا تعلق ہے اتنا ہی آپ کا ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ آپ نے طے کیا تھا. آخر کہنا کیا چاہتی ہوں مجھ سے؟ میں نے رستم سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے.
क्या कहा? आप सुन चुकी हैं वालिदा। मैं रुस्तम से अलहदगी का फैसला कर चुकी हूँ। और मैं अपना फैसला हरगिज़ तब्दील नहीं करूंगी। आओ। आपको सुबह बखैर वालिदा। तुम्हें भी। मैं पाएबाग जा रही हूँ टहलने के लिए, तुम भी चलो साथ। उस मसले के हवाले से मैंने एक फैसला किया है वालिदा। अगर मेरी बात नहीं मानोगी और आका की सफर से वापसी का इंतजार नहीं करोगी तो याद रखना तुम जितनी परेशान अब हो उससे ज्यादा हो जाओगी। मैं यहाँ दरमियानी रास्ता तलाश करने आई हूँ वालिदा। रुस्तम से अलहदा हो रही हूँ, अब साथ नहीं रह सकती। मेहरमा, लेकिन जैसा कि आपने कहा, सफर से वापसी का इंतजार करूंगी। उस दिन तक आका से इस बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे ही दुख्तर हो। लेकिन मेरी एक शर्त है वालिदा। अब क्या तुम मुझसे अपनी शराइत पर बात करोगी? अगर कभी मेरे नसीब ने मेरा साथ दिया और मैंने किसी को अपने दिल में बसा लिया तो उससे शादी करने में आप मेरी मदद करेंगी, चाहे वो जो भी हो। वक्त को नजरअंदाज मत करो मेहरमा, ये हर चीज को तब्दील कर देता है, खास तौर पर ख्यालात को। हो सकता है कि तुम्हारा इरादा ही तब्दील हो जाए। मुझे इस जवाब की जरूरत नहीं। ठीक है, वादा करती हूं, पसंद कर लेना जिसे चाहो। आपको जानती हैं क्या, आका ने मुझे क्यों बुलवाया है अपने पास? मुझे मालूम नहीं है मलिका। फातिमा सुल्तान भी आका के पास ही मौजूद है, शायद उनके मुतालिक कोई बात हो। जब मालूम हुआ तो मैं दंग रह गई। हुरम को सब मालूमात है, उसने क्यों आपसे छुपाया मैं समझ नहीं सकी। आओ। आका, हुरम सुल्तान आपके हुजूर शर्फ बारियाबी के मुंतजर है। आने दो। इतनी नामी बदमाश फिर से मुसल्लत हो गया, काजी के पास जाने की धमकी दे रहा है। जरूर ऐसा ही होगा, मुझे मालूम था। आखिर हुआ क्या, अब क्या चाहता है वो? अशरफिया चाहिए और क्या, और वो भी कम नहीं, 1 लाख अशरफिया चाहता है। जाहिर है साजिश की गई है, उसकी ज़ौजा भी इसमें शामिल है। शहजादा ने क्या कहा फिर? कबूल कर ली इसकी पेशकश? अशरफियों की अदायगी तक मोहलत मांगी है, उस दिन तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझसे पूछे तो मैं दोनों की जान लेना चाहता था, लेकिन शहजादे ऐसा नहीं चाहते, किसी को मालूम ना हो जाए, वो ये सोच रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है यहाँ, कोई खबर है आपको? वालिद अंदर हैं क्या? अंदर है। शहजादी, क्या वाकई अलहदगी चाहती हैं आप? शहजादी, आका आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे आका, शहजादी। मैंने जो सुना वो दुरुस्त है हुरम? तुम्हारे दिल को इस बात से अजियत पहुंची जाहिर है। मेहरमा की बात कर रही हूं, रुस्तम से अलहदगी चाहती है। रुस्तम को अपने महल से भी निकाल बाहर किया है उसने। मैंने एक एक बात बता दी। काश कि आप पहले मुझसे गुफ्तगू कर लेती शहजादी, क्योंकि मसला जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। तो फिर क्या मसला है, बताओ। उनके दरमियान बास मसाइल हैं, ये बात दुरुस्त है,
लेकिन ये कोई इतनी भी अहम बात नहीं है। ये उन दोनों का ज़ाती मामला है। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फातिमा सुल्तान इस दवाजी जिंदगी से काफी दूर रहने की वजह से इस सूरत हाल को ठीक तरह से समझ नहीं पाई है। सूरत हाल से इनकार करने वाली तुम हो हुरम। मैं मेहरमा से बात कर चुकी, उसने फैसला कर लिया है। काफी है। मेरे सामने झगड़ा करने की किसी को भी हरगिज़ इजाजत नहीं। आफीफा खातून, मेहरमा को खबर भेजें यहां आए। आपका जो हुक्म नाका। दिमित्री नामी आओ। मेरे आका, मेरी चांद सी दुख्तर, मेरी आंखों का नूर, कितना बड़ा हादसा रूनुमा हो गया है। मैं दरअसल इसकी हकीकत तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं। मुझे मेहरमा के साथ अकेला छोड़ दें। बैठो। किसने सदमा पहुंचाया? बताओ। रुस्तम पाशा ने। उसने ज्यादती की जो मुझे नहीं बता सकती कि ऐसी कोई खता की है, या शायद तुम्हारे वकार को ठेस पहुंचाई है। अगर ऐसा है तो उसे बचाने की या छुपाने की कोई जरूरत नहीं है मेहरमा। उस महल की दीगर खवातीन की तरह मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। रुस्तम से मेरा रिश्ता कमजोर पड़ चुका है, एक सूखे हुए फूल की तरह, बस शाख से गिरने के इंतजार में है। इसका क्या मतलब? तुम्हारे घर की खुशियां और सुकून खत्म हो गया, ये कह रही हो तुम? इस बारे में आपसे बात करते हुए हिजाब महसूस कर रही हूं, लेकिन हकीकत यही है, मैं उसके साथ खुश नहीं हूं। मुझे कोई माकूल सबब बताओ, क्योंकि जहां तक मैं समझा हूं रुस्तम की कोई गलती नहीं है। क्या ऐसा ही है? जी हाँ, लेकिन दुख्तर, जिंदगी में हमेशा बहार नहीं रहती, खिजा भी है, सरमा भी है। हमारे रब ने आखिर क्यों ये मौसम बनाए हैं? क्यों खिजा और सरमा दोनों को बनाया है? ताकि हमें बहार की अहमियत का अंदाजा हो सके। मेरी जिंदगी में कभी बहार नहीं आई, हमेशा खिजा ही तारी रही। अगर ऐसा महसूस कर रही हो तो तुम्हारे पास कोई माकूल सबब भी होगा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि कुछ अरसा मजीद सोच लो मेहरमा। अपने किए गए फैसले के नताइज पर गौर व फिक्र करो, मवाजना करो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला यही रहता है, हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है ना? मेहरमा, उसे मत रोको हुरम, उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं है। काश तुम्हें उसके दिल में जलने वाली आग का अंदाजा होता, उसका एहसास होता तुम्हें।
हमेशा मैंने माकूल रवैया रखा और इसी रवैये को जारी रखना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपकी इन साजिशों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे धमकी दे रही हो? जो चाहे समझ लें। बेहतर होगा कि आप खुद को मेरी औलाद से दूर रखें, उन्हें अपनी घिनौनी साजिशों के लिए इस्तेमाल ना करें। बसूरत दीगर में आप पर ऐसी बिजली बनकर गिरूंगी कि अंधेरे में भी मेरे साए से खौफजदा रहेंगी आप। इस कम नस्ल से उलझने के बाद मैं अपना रास्ता ही भूल गई। देखो जरा। शहजादी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वो किस लिए? ये आपके लिए भेजा गया है। फौरन भेस बदल कर जाना होगा मुझे। फौरन से पेशतर अपने आप को संभालना होगा। अगर तुम मेहरमा को और अपने इख्तिदार को खोना नहीं चाहते हो तो। काश के मेरे इख्तियार में कुछ होता। दरअसल मसला जब दिल का हो तो हुक्मरान होने से भी कोई फायदा नहीं। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मामूल पर आ जाएगा, लेकिन जरा सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। ये सब आका भी जान चुके हैं। मेहरमा को गौर करने का मशवरा दिया है उन्होंने। आका हमारे तरफदार हैं, ये बात ना भूलो तुम। निकाह खत्म नहीं होगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए बेशकीमत हो। तुम्हें खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। भूलो मत, हमारी ताकत एक दूसरे के साथ है। मैंने खुद देखा हुरम, मेहरमा की आंखों में खुशी की चमक तक नहीं थी। वो गहरे सदमे से दो चार है। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। कोई भी जन्नत के बाग का मकीन नहीं होता। हर कोई बेहतरी की उम्मीद रखता है, इसी उम्मीद के सहारे जीता है, दुआएं मांगता है, लेकिन सिर्फ मेरे सिवा, क्योंकि इस जमीन पर मेरी जन्नत आप हैं। मैं तुम्हारी जन्नत हूं। तुम मेरे लिए क्या हो, क्या ये जानते हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं भी आपकी जन्नत हूं। बाज़ औक़ात जहन्नम भी। मैं जानती हूं कई बार आपका दिल तोड़ा है, दुख दिया है। हर किसी की एक तबीयत होती है और मैं ऐसी ही हूं। बरसों पहले आपने मुझसे इसी वजह से मोहब्बत की। अगर एक लम्हे के लिए भी मैं अपने आप में किसी भी किस्म की तब्दीली ले आती तो ना मैं वो हुरम रहती और ना आप सुलेमान। आका ही मुनासिब तरीन फैसला करेंगे। खास तौर पर सफर से पहले वो अलहदा होने की इजाजत कतई नहीं देंगे। आप जानती हैं, आका ने मुझे सोचने का मौका दिया था। मैंने भी उनको अपने फैसले से आगाह कर दिया। मुझे अलहदगी की इजाजत दी जा चुकी है। रुस्तम, सफर के बाद हम अलग हो जाएंगे। बाद में किसी को अफसोस हो मैं नहीं चाहती हूँ। आका और वालिदा तुम्हारी खिदमत से मुतमईन हैं। अलहदगी के बाद भी अपना फरीजा अदा करते रहोगी। आप क्या समझती हैं?
अलहदगी के बाद मैं अपना फरीजा अदा करता रहूंगा और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। आपने मुझे हमेशा गलत ही समझा है शहजादी।